फॉलो करने होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, वी आर स्टडिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स and the chapter name is number system. In the previous class we have studied type of fraction. So how many of types of fraction? Three. Three. Can you name? Can you name it? Can you name it? What are their names? What are their names? Please write down in the chat section. Please write down their name in the chat section. I want to see your answer in the chat section. Okay. What are their names? What are their names? Yes. So the first answer is proper, mixed, improper. Proper, mixed, improper. Very nice. So the students are telling that, sir, there are three types of fractions. First is proper fraction. Okay. Second is improper fraction. And the third is mixed fraction. Okay, students. Third is mixed fraction. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay, okay, very nice. So on this topic, I will ask you one question. Okay, on this topic, I will ask you one question and you have to answer in the poll section. You have to answer in the poll section. And that's why I am turning off the chat section and turning on the poll section. Now you can go in the poll section and answer. Please, everyone, answer in the chat section. If you want to answer in the chat section, then how can you answer? See, let's suppose this is your screen of your mobile. Then there will be three dot. There will be three dot. When you click it, a box will appear like this, and a button will appear like this. The button name is activities. The button name is activities. When you press this button, then a box will appear like this. Here you will see polls and here one active. After clicking it, a box will appear like this. Okay. Here will be the question number and here will be four options. That is A, B, C, D. You have to select one out of four options, and when you select, you have to press this button naming vote. You have to press the vote button, and when you click the vote button, your answer will be submitted. Okay. After clicking on vote button, your answer will be submitted. So this is the process by which you can answer in the poll section. This is step 1, this is step 2, this is step 3, and this is step 4. Okay, so go in the poll section and please answer. Okay, please answer. Students, please go in the poll section and answer. I have turned off the chat section and turning on the poll section. Okay, and that's why you have to answer in the poll section. Okay, please answer.
Okay, now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay. Now you can answer in the chat section. You can answer in the chat section. Okay, students. Okay. Let's see. The question says the mixed fraction 12 5/9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो बेटा 12 है और ये 5/9 है, then you have to multiply 9 with 12. So when you multiply 9 with 12, what will you get? 108, and in it you have to add this 5. So 108 plus 5, what will you get? 113. Okay, student, 113. So the correct answer will be 113 by 9. It means B will be the correct answer. B will be the correct answer. Have you got it? Have you got it? क्या आप सभी को समझ में आ गया बेटा? Okay, very nice. Very nice. So the correct answer will be B part. So आज का टॉपिक है fractions, sorry, operations on fractions. So the today's topic is operations on fraction. Please put a heading on your notebook. Okay, please put a heading on your notebook. Then we will move further. Okay. Have you noted down, class? Have you noted down? Okay. Okay, class. Please focus. Please focus. Here you can see a topic least common multiple. It means LCM. LCM का बेटा फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन multiple. How many of you are aware of it? How many of you are aware of it? Do you know what is LCM? If yes, then type Y, and if no, then type N. I want to see how many of you know LCM. Just a simple question, okay? How many of you know LCM? Yes. तो काफी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरे को एलसीएम आता है। देखो बेटा, अगर इस प्रकार से दो नंबर दे रखे हैं 30 एंड 60, ठीक है, 30 एंड 60, और बोला जा रहा है कि इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे, है ना? पहले आप 2 से कट करते हो, सबसे पहले इसको किससे कट करते हो, 2 से। अगर 2 से कट हो जाए तो कट कर देते हैं। तो 30 को 2 से कट करोगे कितने टाइम में जाएगा, 15, क्योंकि 15 टू जा 30 और 30 टू जा 60 होता है। फिर 2 से कट करोगे, क्यों, क्योंकि मान लो ये 15 तो नहीं कट होगा, मैं भी समझता हूँ, ये 15 तो एज इट इज उतर जाएगा, लेकिन ये 30 नहीं होगा, 30 आराम से कट जाएगा, तो 15 टू जा 30। अब देखो बेटा, अब ये किससे कट होगा, 3 से। लाइन बाय लाइन बढ़ते चले जाते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे कट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं। तो क्या बेटा 3 के बाद 4 से कट करेंगे, नहीं, 4 से नहीं कट करेंगे, किससे कट करेंगे, 5 से, है ना। 5 के बाद क्या 6 से कट करेंगे, नहीं, 5 के बाद 7 से कट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, प्राइम नंबर्स से हमेशा कट करने की कोशिश करते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से कट होगा, ये 3 से नहीं कट होगा, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो एलसीएम कितना होगा, तो बेटा एलसीएम होगा, you have to multiply these numbers, okay, these numbers. So 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 5 3 जा 15, 52 जा 30, 32 जा 60,
So the LCM will be 60. बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? Have you got it? The LCM will be 60. Have you got it? Please take a screenshot. Please take a screenshot. It is a very important topic before learning operation of fraction. Okay. Before learning operation of fraction, you have to answer LCM. Okay. You have to learn LCM. I can see that many of you have learned it. Okay. So please take a screenshot. Please take a screenshot, or you can note it as well. Okay. So I have a question for you. I have a question for you. Let's suppose there is 15 and 20. So what is the LCM of 15 and 20? Can anybody tell me in the chat section? Can anybody tell me in the chat section what is the LCM of 15 and 20? Please write down your answer in the chat section. I want to see your answer in the chat section. Okay. I'm waiting for the correct answer. I'm waiting for the correct answer. Okay. बताओ बेटा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका तो 60 आएगा, इसका तो 60 आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। पहले 2 से कट करने की कोशिश करेंगे। 15 तो कट नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बाकी 20 तो कट हो रहा है ना, 20 को कट करो। 10 टू जा 15, सॉरी 10 टू जा 20, है ना। फिर से कट करो 2 से, नहीं कट होगा, कोई इशू नहीं है। 10 तो कट हो रहा है ना, बस जो भी अगर एक भी कट हो रहा होगा तो जरूर उस नंबर से हमें कट करना होगा। तो पहले 2 से कट करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, है ना। इस प्रकार जो भी प्राइम नंबर आप जानते हो उन्हीं प्राइम नंबर से ही क्या होता है, कट करना होता है। तो अब चलो ये हो गया। अब 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3। तो 3 5 जा 15, 5 नहीं कट होगा, एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपको मल्टीप्लाई कराना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सही बात है बेटा, आंसर 60 आएगा। आंसर 60। वर्षा के नाम से जो बच्ची है बेटा, आंसर 210 नहीं आएगा बेटा, आंसर 210 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60। तुम देख लो ध्यान से, वर्षा के नाम से जो भी बच्ची है। कुछ बच्चे 140 बोल रहे हैं। अच्छा, 140 120 200 कुछ भी बोले जा रहे हो आप, बताओ ना, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चों आप सभी को समझ में आया ना? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप करो। बाकी लोग को समझ में आया ना? ठीक है, चलो प्लीज पुट अ हेडिंग एडिशन। अभी हम लोग क्या सीख के आए हैं थोड़ा सा बेटा? एलसीएम। अब मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, एलसीएम निकालते कैसे हैं, है ना। जिन बच्चों का वीक है एलसीएम, उसको सीख लिया आप लोगों ने, सभी बच्चों ने। अब हेडिंग लगा दो एडिशन। प्लीज पुट अ हेडिंग एडिशन। ओके, क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, जो भी फ्रैक्शंस होंगे उनको ऐड करने होंगे। ठीक है, जो भी फ्रैक्शंस होंगे उनको क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। ठीक। अच्छा बच्चों, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, क्या आप सभी लोग उस सवाल का आंसर देने के लिए रेडी हैं? मेरा एक सवाल है, क्या आप सभी लोग उसका आंसर देने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? ओके। तो सवाल पहले छोटा सा ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक ही फोन से दो बच्चों ने या फिर तीन बच्चों ने ज्वाइन किया है? ऐसे कितने बच्चे हैं? अपना नाम लिखिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो एक ही फोन से दो दो बच्चे या फिर तीन तीन बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग की अटेंडेंस नहीं बनती है, उसी अटेंडेंस को बनाने के लिए ये चीज पूछा जा रहा है। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं? जो बच्चे ऐसे हैं वे अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। मान लेते हैं कि अगर एक फोन से राम और श्याम मोबाइल से जुड़ते हैं क्लास के लिए, तो आप चैट सेक्शन में लिखिएगा राम एंड श्याम, ऐसे। कोई बच्चा नहीं है ऐसा? अच्छा, अगर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है तो एन टाइप करिए। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है तो एन टाइप करिए। ओके। ओके। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके।
चलो, तो मेरा सवाल क्या है, देखो मेरा सवाल ये है, आपको आपको एलसीएम निकालना है बेटा 10 और 65 का। आपको एलसीएम निकालना है 10 और 65 का। चलिए निकालिए और इसका आंसर बताइए, 10 और 65 का एलसीएम क्या होगा। यही मेरा सवाल है छोटा सा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। 10 और 65 का एलसीएम बताइए। ओके, बाकी लोग भी बताएंगे। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 130 आएगा। ओके, बढ़िया है। सही है बेटा, 130 ही आना चाहिए, क्योंकि पहले आप इसको 2 से कट करोगे, 2 5 जा 10, और 65 तो कट होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर आप इसको 5 से कट करोगे तो 5 1 जा 5, और ये 13 5 जा 65। फिर यहाँ पे 13 से कट करोगे, 1 तो पहले ही कटा हुआ है, 1 यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो तेरे बच्चे 65, 65 दूना 130, सही बात है। एलसीएम आएगा बेटा 2 × 5 × 13, यानी कि 130। ठीक है बेटा, 130। सारे बच्चे समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके बेटा, चलो अब हम लोग अपने मेन कंटेंट पे आ जाते हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन, किसका ऑपरेशन, फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन का। ऑपरेशन का मतलब होता क्या है, या तो उसको जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो बेटा भाग करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो हम लोग ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। और इन चारों ही चीजों को करने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन किस पे करने वाले हैं, फ्रैक्शन पे। देखो यहाँ पे लिखा है ऐड करो, किसको किसको ऐड करो, 2/5 को किसके साथ में ऐड करो, 1/3 के साथ में ऐड करो। यही सवाल है। ठीक है, हमें ऐड करना है 2/5 को 1/3 के साथ में। तो बेटा देखो प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे आप सीखोगे। तो एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, अपनी नजरें जो है स्क्रीन पर लगाओ पूरा अच्छे तरीके से, और एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। कंसंट्रेट का मतलब है सब कुछ भुला दो और सिर्फ फोकस करो स्क्रीन पे। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कहाँ पे, स्क्रीन पे फोकस करो, और कहीं आपको फोकस नहीं करना है। ओके, होगा क्या, आप जानते हो ये क्या होता है। तो बेटा इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप जानते भी होगे इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ये जो 1 है वो क्या है यहाँ के लिए, न्यूमरेटर है। बेटा ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है ना। ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। बताओ बच्चों, ये चीज जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अभी हम सब कुछ सिखाएंगे। पहले बताइए, आप लोग इतना जानते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया। यस ठीक सर। है, कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन आप सभी लोग देखेंगे। अब देखो प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखा होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा, उनका लेना है एलसीएम। तो 5 और 3 का आप ले लीजिए क्या, एलसीएम। तो आप कहोगे सर 2 से कट करिए सबसे पहले, लेकिन 2 से कट होने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो 2 यूज नहीं करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। जब यूज ही नहीं हो सकता है 2, तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा इसमें, और फिर 5 हो जाएगा। यानी कि यानी कि एलसीएम क्या होगा, बेटा एलसीएम होगा 15, है ना। एलसीएम होगा 15। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, अब रूल क्या कहता है, इस 15 को इस 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो बताओ बेटा, जब 15 को 5 से आप डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, तो 5 3 जा 15 आएगा ना। तो ये वाला जो 3 है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस। अब फिर क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, है ना। बेटा जो रूल है, जैसे मैंने सिखा रहा हूँ वैसे सीखो।
इस 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 5 जा 15, कैंसिल। तो ये जो 5 आया, ये जो 5 आया बेटा, ठीक है, ये वाला 5, ये यहाँ पे नोट करना है। बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? तो बस अब देखो जोड़ दो इनको। तो ये 5 है और ये क्या है, 3 है। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8/15 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, 8/15 इसका सही उत्तर होगा। 8/15 है ना, 8/15 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने बच्चों का ये वाला आंसर आया था, यही आंसर आया था? मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर किया था। ठीक है, पहली बार था तो गलत उत्तर होगा, ये सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सीखना है। ठीक है, अच्छा एक बार और बता दें। अच्छा एक बार और बता देते हैं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने इस 5 और 3 का एलसीएम लिया, ये तो आप जान ही गए होगे। 5 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15। ये तो सब बच्चों को मालूम चल गया होगा। चलो, फिर हमने क्या सिखाया उस बात को सीखिएगा। हमने ये कहा कि जो एलसीएम आ जाता है, जो एलसीएम बेटा आ जाता है, ठीक है, सॉरी, जो एलसीएम आ जाता है उस एलसीएम को बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा। चलो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 3 था। ठीक है, मैं इसको ग्रीन से बना दूं क्या, ग्रीन बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा, ग्रीन नहीं ब्लू से ही बनाता हूँ, ब्लू बढ़िया रहेगा। चलो हमने इसको ब्लू से बना दिया। ये जो ब्लैक वाला है 5, ठीक है बेटा, ये ब्लैक वाला सबसे पहले ये डिवाइड करेगा 15 को। तो 5 3 जा 15, कितना आया, 3 आया ना। देखो यहाँ पे 3 हमने लिख दिया, ये देखो ब्लैक वाले का 3 है। ये जो 3 आया वो किसकी वजह से आया, इस 5 की वजह से आया। ठीक, अब देखो फिर क्या होगा, इसी 15 को, है ना, इसी 15 को इस ब्लू वाले 3 से डिवाइड करो। 3 5 जा 15, कितना आया, 5 आया ना। देखो मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये जो रेड था मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये किसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से आया। अब इन दोनों को ही क्या कर दो, जोड़ दो। 3 और 5 कितना होता है, 8, और 15 नीचे तो था ही, 8/15। क्या अब समझ में आया? सूरज यादव के नाम से जो बच्चा है, अब क्लियर है? सूरज यादव के नाम की, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा। तो आप इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा बेटा एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 2 है, सॉरी सॉरी, पूरा ये गलत हो गया, सॉरी। मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर 2 है। चलो देखो, देखो बेटा थोड़ी सी गलती हो गई थी, है ना, यहाँ तक तो सही था। क्योंकि जब आप इस 15 को बेटा, इस 15 को जब आप 5 से डिवाइड करते तो 3 तो आता, सही बात है, बिल्कुल सही आता। लेकिन ये 3 आ रहा है ना बेटा, ये 3 आ रहा, इस वाले 2 से गुणा करेगा, इस वाले 2 से, ये रूल कहता है। तो 3 2 जा 6 होगा, और ये बाकी चीज सेम आएगी, 3 5 जा 5, हाँ सेम आएगी। तो 6 और 5 11। बेटा हमने ध्यान नहीं दिया था, गलती से हमारा हो गया था, हमने इस 2 को ध्यान ही नहीं दिया सवाल लगाते वक्त, अब जाके मेरे को दिखाई। यस, 11/15 आएगा बच्चों। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा।
हम 2 को पूरी तरीके से भूल ही गए थे, है ना, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब समझ में आ गया ना कि जो न्यूमरेटर में नंबर होगा, ठीक है बेटा, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, बट मैंने आपको ये सिखा दिया कि मिस्टेक कैसे हो गई थी। चलो, अब इस वाले सवाल को करो, लेकिन एक काम और कर देते हैं, एक सवाल और हम करवा देते हैं, एक सवाल और हम करवा देते हैं, ठीक है। बेटा ये है सवाल, ठीक है, ये है सवाल, 5/13 + 2/4, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ही इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 13 का और इस वाले 4 का एलसीएम लोगे, ठीक है। चलो बेटा एलसीएम लो, पहले 2 से कट करोगे, 13 तो कट हो नहीं पाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, 13 से कट करोगे, 13 1 जा 13, तो एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 13, ठीक है। 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, सारे बच्चों का एलसीएम 52 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोले कि हाँ सर 52 आएगा इसका एलसीएम। अब क्या करना है, तो अब इस 52 को, है ना, इस 52 को इस वाले 13 से डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना वो 13, 13 4 जा 52 कैंसिल हो जाएगा, बेटा ये 4 आया ना, इस वाले 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले के 5 से, ऊपर वाले 5 से आपको क्या करना है, यानी न्यूमरेटर के 5 से इस 4 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 प्लस, प्लस, अब इस 4 से, है ना, इस 4 से डिवाइड करो 52 को, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, ठीक। अब इस 13 का मल्टीप्लाई बेटा करना पड़ेगा आपको इस न्यूमरेटर के 2 से, तो 13 2 जा 26, तो 26 यानी कि 26 और 20 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 46, ठीक है, 46/52 कितना आएगा। आप इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, अगर ये कट हो रहा है तो बेटा इसको कट कर सकते हो बेटा, हालांकि इसका इतना कितना आंसर आप सभी का आ रहा है इतना, आप चाहो तो इतना लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कट हो तो काट सकते हो, ठीक है, अगर वो कट हो रहा हो तो काट सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 46 और 52 है ना, आराम से ये कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा बेटा, इसको अगर कट करोगे 2 से तो 26 लिखोगे, और इसको कट करोगे तो क्या लिखोगे, 23 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 23/26, तो करेक्ट आंसर विल बी 23/26। बेटा अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो ना, यहाँ तक भी, तो भी आपका उत्तर क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर क्लियर है तो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बेटा अगर क्लियर है तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करो, आप सॉल्व करो, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एवरीवन प्लीज आंसर इन द चैट, पोल सेक्शन, सॉरी, पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। एवरीवन प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे जैसे भी मैंने आपको सिखाया वैसे ही सवाल को कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना बेटा, तुरंत आंसर आ जाएगा, आप एक बार करके तो देखो।
आप एक बार इसको करके देखो, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। बेटा यू हैव 20 seconds, ओके, यू हैव 20 seconds. Please go in the poll section and then answer. Okay, students, now I will delete the poll section. Okay, now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay, so students are saying, sir, B option will be correct. यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सर। तो देख लेते हैं क्या ऐसा है। 7 और 4 का आप एलसीएम ले लो। तो पहले 2 से कट करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 से कट करो, इसलिए बेटा एलसीएम होगा 2 इंटू 7 यानी कि 28। तो बेटा एलसीएम तो हो जाएगा आपका 28। अब इस 28 को आपको डिवाइड करना होगा 7 से, है ना। 7 4 जा 28। ये जो 4 आया इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 4 4 जा 16। अब ये 4 28 को डिवाइड करेगा, 7 टाइम में जाएगा ये। तो इस 7 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। तो बेटा 21 और 16 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 37 आएगा ना। यस, 37/28। इट मींस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बच्चों क्या आपको समझ में आया कि कैसे हो पा रहा है ये? अगर समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करो, है ना। जो अगर आप पूछोगे सर कौन सा वाला पार्ट है जो आपने करा है, देखो ये जो मैं घेर रहा हूँ ग्रीन कलर से, जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ यही है। अब बाकी तो कैलकुलेशन, बाकी जो है वो तो क्या है, रफ वर्क है। बाकी सब बेटा रफ वर्क है और यही तरीका है लिखने का। ये आप समझ पा रहे हो, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है बस उतना ही प्रोसेस है, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है आगे पीछे। क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको ये क्लियर है ना? जो आगे पीछे लिखा हुआ है बेटा वो क्या है, कैलकुलेशन। और सिर्फ आपका करेक्ट वाला जो मेथड है वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यस, तो आपने देखा द आंसर विल बी बी पार्ट, इट मींस 37/28। स्टूडेंट्स
प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें देखो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। जब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना। ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है इस सवाल में, ठीक है बेटा, हिंट क्या है इस सवाल में, देखो जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर देना। पिछले क्लास में कन्वर्ट करना सिखाया गया था, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बस यही हिंट है, अब इसको आप करिए। Everyone please answer in the poll section. Okay. Please answer in the poll section. Everyone please answer. सर जी हो गया। ओके बेटा, बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए। आपका हो गया, अच्छी बात है। बच्चों 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 10 सेकंड के बाद हम पोल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर रहे हैं। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, चलो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज 13/2 ऐड करना है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 4 2 जा 8, और 8 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। बेटा 9/2 आएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने पर। बताओ बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो बेटा, यहाँ भी ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी एलसीएम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा।
2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 13 1 जा 13 और 9 1 जा 9। 13 और 9 कितना होता है 22, 22/2 यानी कि 11। बेटा ये तो ए वाला पार्ट आएगा, ए वाला पार्ट आएगा। बताइए आप सभी का ए वाला पार्ट आया? बताइए बच्चों, क्या आप सभी का ए वाला पार्ट आया? बहुत बढ़िया। किसी का अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी का अगर कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, यानी किसी बच्चे को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। बच्चों एक सेकंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? एक सेकंड। देखो बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? ओके, तो आपने देखा जो करेक्ट आंसर है वो clear है। अब चलो हेडिंग लगाओ, सब्ट्रैक्शन। हम लोग ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं, है ना? ऑपरेशन कर रहे हैं, और इस ऑपरेशन में हमने क्या अभी को जस्ट पढ़ा? एडिशन पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो बेटा हेडिंग लगा दो अपने नोटबुक में, ठीक है? सब्ट्रैक्शन के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। लाइन बाय लाइन इसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? क्या आपने इसका हेडिंग लगा दिया? क्या आपने इसका हेडिंग लगा दिया? ओके। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है कि सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 3/4, यानी 3/4 से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 2/3। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 2 जा 4, 3 तो कट नहीं होगा, 2 1 जा 2, 3 तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, 3 1 जा 3। तो बेटा एलसीएम कितना होगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 12। अब इस 12 को, है ना बेटा, इस वाले 12 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। रुको मैं इसको इरेज कर देता हूँ तब तक, क्योंकि एलसीएम वाला पार्ट तो सारे बच्चे अब कर ही ले जाते हैं। तो इस 12 को डिवाइड करूंगा, किससे बेटा डिवाइड करूंगा? देखो जो ये 4 है ना, इससे, तो 4 3 जा 12, यानी 3 आया ना। अब ये वाला जो 3 है, इस वाले 3 से क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। बीच में माइनस है तो माइनस एज इट इज उतार दो, ठीक है बेटा? बीच में माइनस है तो माइनस को क्या कर दो? एज इट इज उतार दो, एज इट इज राइट डाउन कर दो यहाँ पे। अब क्या करोगे? अब इस 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करो बेटा। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, 4 आएगा। यानी अब इस 4 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे कराओगे? इस 2 से कराओगे। तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 घटाओगे यानी माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 12 आएगा। तो 1/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हैव यू गॉट इट? Okay, so please take a screenshot. Please take a screenshot for this page. So I can move further. Have you taken the screenshot? Have you taken the screenshot? Okay, okay बेटा।
So the correct answer will be 1 by 12. So here are some question and you have to answer it. Okay. So please go in the poll section. Please go in the poll section and answer. I have turned off the chat section and turned on the poll section. बहुत ही प्यारा सा सवाल है, पहले इसको सॉल्व करिए तब जाके इसका आंसर करिएगा। करना क्या है, सब लिखा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1/3 फ्रॉम 4/5 द रिजल्ट इज, यानी कि 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से करना है, 4/5 में से। तो 4/5 लिखिए, बीच में माइनस लगाइए, फिर 1/3 लिखिए। अब इसको सॉल्व करके आप लोग खुद आंसर बताने वाले हैं। ओके बेटा, आप लोग खुद इसका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। इसको सही से करेक्ट आंसर दीजिएगा। सारे लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। Students, please answer in the poll section. Okay, you have 20 seconds. From now you have 20 seconds. Okay, after 20 seconds I will delete the poll section. सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। Okay beta, I will delete poll section and turn on the chat section. So please go in the chat section and type your answer. So the question is, on subtracting 1/3 from 4/5, तो 4/5 से सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 को। तो 5 और 3 का एलसीएम आप निकालोगे ना बेटा, 15 आएगा। आप निकाल करके देखना। अब इस 15 को, है ना, इस वाले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले 4 से, तो 4 3 जा 12। अब क्या करो, 3 5 जा 15, ये 5 आया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, 5 1 जा 5, तो 12 में से 5 जाएगा बेटा, क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। बी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। सो द बी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया? Okay. Okay, beta. So the class is ended. Now we will study in the next session. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। ओके, ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। और हाँ, अब होमवर्क नोट कर लीजिए।